ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں بازاروں کی رونقیں بحال، صبح سحری سے شام 5 بجے تک دکانیں کھلی رہیں۔ چھوٹی بڑی مارکیٹوں اور بازاروں میں شہریوں کا رش، مرد و خواتین نے حفاظتی انتظامات کو پس پشت ڈال دیا، بلا خوف و خطر سارا دن شاپنگ میں مصروف رہے۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس اور بازار کھل گئے۔ خریداری کے لیے بازار میں خواتین کا رش لگ گیا۔ خواتین کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر بازار میں خریداری میں مصروف ہیں۔ ابھی تھوڑی سی عادت نہیں ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ماسک لگائیں، اور دیکھیں یہ سینیٹائزر رکھا ہوا، ہر کسٹمر اگر ہم پہلے ہاتھ دھلواتے ہیں اندر انٹر ہونے سے پہلے۔ خواتین سماجی فاصلہ رکھنا اور ماسک پہننا بھی بھول گئیں۔ بازار میں رش سے کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ بتاتے تھے پھر بھی انہوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اس لیے رش ہوتا ہے۔ یہ پہلا دن تھا، کل تو رش تھا۔ دوسری جانب دکاندار بھی SOPs پر عمل درآمد کرنے سے گریزاں ہیں۔ کیمرامین AD نواز اور ساتھی رپورٹر ریلشبہ آصف کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ خواجہ شفیق کا کہنا ہے کہ تاجر کاروبار کرنے کے دوران حکومتی SOPs کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اگر حکومتی SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ کرونا وائرس پھیلے گا تو حکومت دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے۔ تمام تاجروں سے گزارش ہے حکومتی SOPs پر عمل کریں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ انتہائی افسوس اور دل گرفتگی کے عالم میں اپنے تاجر بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ 2 روز سے میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ہمارے کاروبار حکومت نے کھول دیے، لیکن ہم کرونا وائرس سے نبردآزما ہونے کے لیے جو SOPs ہمیں اپنانے چاہیے ہم بالکل نہیں اپنا رہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس وائرس کے پھیلانے میں ممد و معاون نہ ثابت ہو جائیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے اہل خانہ پر، اس قوم پر رحم کھائیں اور مکمل پابندی کریں۔ کہیں ایسی صورتحال پھر نہ پیدا ہو جائے کہ لاک ڈاؤن ایک سویر قسم کا، اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن دوبارہ حکومت کو مجبور ہو کر نافذ کرنا پڑے اور ہم پھر خود کاروبار سے محروم ہو جائیں۔ مہربانی کریں میری استدعا کو شرف پذیرائی بخشیں۔ دوسری جانب لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تاجروں کا نیا مطالبہ، عید سے 3 روز قبل جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کاروباری مراکز بند نہ کروائے جائیں۔ ایسا کہنا ہے سینئر نائب چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان شیخ اکرم حکیم کا۔ ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ اگر عید سے پہلے 3 روزہ لاک ڈاؤن رکھا جائے گا تو عید کی 3 چھٹیاں ملا کر مسلسل 6 روز کا کاروبار بند رہے گا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اقبال صادق۔ عید الفطر کی آمد سے قبل تاجروں کا اہم مطالبہ سامنے آ گیا۔ سینئر نائب چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران شیخ اکرم حکیم کا کہنا ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہے، سوموار، منگل اور بدھ کو عید ہے۔ اگر عید سے پہلے 3 روز کاروبار بند رکھا گیا تو عید والے 3 روز ملا کر مسلسل 6 روز کاروبار بند رہے گا، لہٰذا حکومت عید سے قبل 3 روز جمعہ سے اتوار تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت دے۔ جو عید کی چھٹی کے آ رہے ہیں وہ چھٹی ہو، جو عید سے پہلے 3 دن آ رہے ہیں جس میں حکومت پاکستان نے چھٹی کا اعلان کیا ہے، وہاں ان دنوں میں چھٹی نہ ہو تاکہ ہم ان 3 دنوں میں کاروبار کر سکیں۔ شیخ اکرم حکیم کا کہنا تھا کہ عوام کی بہتری کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات خوش آئند ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اب جہاں تک مطالبات کی بات ہے تو ہم حکومت پاکستان کی قوم ہے، عوام ہے، ہماری حکومت ہمارے بارے میں نہیں سوچے گی تو کس کے بارے میں سوچے گی؟ شیخ اکرم حکیم نے کہا کہ امید ہے حکومت تاجروں کو عید سے قبل 3 روز کاروبار کو بحال رکھنے کی اجازت دے گی۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے DG خان سے، جہاں صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان کی آمد ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی مشیر صحت حنیف خان پتافی کے گھر آمد ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں DG خان سے، جہاں صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان کی DG خان آمد ہوئی۔
सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी के घर आमद हुई है, जहां पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं डीजी खान से, जहां सूबाई वजीर इत्तलात व नशरियात फयाजुल हसन चौहान की डीजी खान आमद हुई। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी के घर आमद हुई है, जहां पर मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कपास की पैदावार के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जलालुद्दीन रोमी मैदान में आ गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपास के काश्तकारों को सहूलियात दी जाएं। मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जलालुद्दीन रोमी का कपास और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज़बूहाली पर तबादला ख्याल। वजारत फूड सिक्योरिटी से कपास की फसलों की निगरानी का मुतालबा कर दिया। कहा कि कपास की भी पेशगी कीमत का ऐलान किया जाए। मियारी कपास की कीमत भी अलग तय करने की गुजारिश की है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल सादिक। मारूफ सनतकार और साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान और डेरा गाजी खान ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि कई बरसों से मुल्क का ज़राई शोबा मुश्किलात का शिकार है। 1992 तक कपास की काश्त दूसरे नंबर और अब 5वें नंबर पर है। आज पाकिस्तान में 85 लाख जबकि इंडिया में 3 करोड़ 80 लाख गांठें तैयार हो रही हैं। कपास के काश्तकार जिनर्स और एप्टोमा मिलकर लाहेअमल बनाए। हमें सिर्फ धागा नहीं, कपड़ा बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। माजी में स्पिनिंग मिलें बहुत लगी, गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया और धागे की प्रोडक्शन हमारे पास बहुत एक्सेस है। आज हम एक दौर में कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, अब धागा करते हैं, कपड़ा कम करते हैं, वैल्यू से कम करते हैं। तो अब जरूरत इस उम्र की है कि प्रायोरिटी को चेंज किया जाए और हम अपनी प्रायोरिटी 1 करें गवर्नमेंट को। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वजारत फूड सिक्योरिटी कपास की फसलों की निगरानी करे, ज़राई अद्वियात, यूरिया और DAP की कीमतों में कमी करने, काश्तकार को बराह रास्त सब्सिडी दी जाए। गंदम और दीगर फसलों की तरह कपास की इमदादी कीमत का पेशगी ऐलान, जबकि मयारी कपास की कीमत अलग होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे कर्जे मुतारिफ कराए जाए जिनकी मुद्दत 12 साल और मार्कअप कम से कम हो। ऐसे तरीकाकार बनाया जाए कि लोगों को सिक्योरिटी फराहम हो। बलूचिस्तान में लॉन्ग टर्म लीज पर लोगों को ज़मीनें दी जाएँ, उनको इंसेंटिव दिया जाए और जो अच्छी पैदावार करे, अच्छा रेशा लाए, उसको कुछ स्पेशल मेडल्स या वट एवर कैश अवार्ड्स इस तरह की कुछ चीज़ें दी जाएं। अपनी तजावीज़ में ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने बताया कि कपास की फसल पर वायरस के खिलाफ तहकीक होनी चाहिए। टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। वायरस के खिलाफ रिसर्च करने वाले इदारों और ज़राई यूनिवर्सिटीज को फाल किया जाए। कॉटन सेस की आमदन पॉलिसी के मुताबिक रिसर्च पर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कॉटन सपोर्ट पॉलिसी तरतीब देते हुए टेक्सटाइल सेक्टर और जिनर्स को एतमाद में लिया जाए। कैमरामैन AD नवाज के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर मुल्तान गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम। हदफ के हुसूल में मजीद ताखीर का इम्कान। अब तक महकमा फूड सिर्फ 80% हदफ हासिल करने में कामयाब हो सका। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वेंस के मई के आखिर तक टारगेट पूरा हासिल करने की यकीन दहानी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। जिला मुल्तान में होने वाली बारिशों के बाइस गंदम की खरीदारी का अमल मुतासर और गंदम खरीदारी के हदफ के हसूल में मजीद ताखीर का इम्कान है। गंदम खरीदारी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वैंस का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 21 लाख बोरी गंदम खरीदारी के हदफ में अब तक सिर्फ 79% गंदम खरीदी जा सकी। ये 2 दिन में हमारा जो बारदाना है वो 100% जारी हो जाएगा। 80% हमारा टारगेट पूरा हो गया है। अगर ये रात वाली बारिश ना होती तो मैं ये वसूख से ये कह सकता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से ये अगले 7-8 दिन में हमारा जो टारगेट है वो 100% पैदा ये पूरा हो जाना था। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वैंस का कहना था कि जिला मुल्तान में गंदम खरीदारी का हदफ मई के आखिर तक हासिल कर लिया जाएगा। किसानों को हदफ का 95% बारदाना जारी कर चुके हैं। निजी गोदामों पर छापे मारकर गंदम रिकवर करने का सिलसिला जारी है। मैंने रेड किए हैं, वहां से तकरीबन हमने 10,000 मन गंदम पकड़ी है। उनसे हमने अंडरटेकन ली है और वो इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर वो हमारे मखदूम रशीद सेंटर के ऊपर वो गंदम पहुंचाने के पाबंद हैं, वरना हम उनके खिलाफ FIR लार्ज करवाएंगे। मुमताज वैंस का मजीद कहना था कि जिला में मुख्तलिफ मुकामात पर निजी सतह पर जखीरा की गई हजारों मन गंदम भी सेंटर्स पर पहुंचाई जा रही है। जिले इंतजामिया, पुलिस और स्पेशल ब्रांच का भरपूर साथ मौजूद है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान।
मुल्तान में घरों और गोदामों में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने जखीरा अंदोजों को 3 यौम की डेडलाइन दे दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम जखीरा की गई गंदम 3 दिन के अंदर मराकिज खरीदारी गंदम पर फरोख्त कर दी जाए। 3 दिन बाद छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। जखीरा की गई गंदम जब्त कर ली जाएगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ नए ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जखीरा अंदोजों को मौके पर गिरफ्तार किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि ज़िला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों की फहरिस्तें हासिल कर ली हैं। 3 दिन बाद बिला इम्तियाज ऑपरेशन शुरू होगा और किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। कानून के मुताबिक हर फैमिली को सिर्फ 25 मन गंदम घर में रखने की इजाजत है। बहावलपुर का जहां पीएचए को तरक्याती फंड्स मुंतकिल ना होने का मामला, बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। डायरेक्टर डेवलपमेंट नौशिन मलिक, डीजी पीएचए आसिफ हयात समेत आला अफसरान की शिरकत। तमाम तरक्याती महकमों को पीएचए के फंड्स का 1% हिस्सा फौरी मुंतकिल करने की हिदायत। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को मुस्तहकम करने और खुसूसी फंड्स पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर डेवलपमेंट नौशिन मलिक, डायरेक्टर जनरल पीएचए आसिफ हयात लोहदी, कंजर्वेटर महकमा जंगलात, एक्सियन पब्लिक हेल्थ समेत पीएचए के मुतादिद अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि पीएचए को मसाइल से निकालना हमारी तरजीहात में शामिल है। जिला भर में जारी तमाम तरक्याती कामों में से 1% शेयर पीएचए को जारी किया जाए। पीएचए को फंड्स मुंतकिल होने के बाद ही ग्रीन एंड क्लीन मुहिम पर भरपूर तरीके से काम होगा। बिल्डिंग, पब्लिक हेल्थ, कॉरपोरेशन, हाईवे, एनएचए समेत तमाम इदारे अपने फंड से 1% पीएचए के अकाउंट में ट्रांसफर करें। डायरेक्टर डेवलपमेंट तमाम तर मंसूबों से पीएचए का शेयर इन्हें मुंतकिल कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। आपको बताएं, कोरोना के बायस आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इकदामात, एहसास किफालत प्रोग्राम के फेज 3 का आगाज। 80, 70 या 81, 71 पर मैसेज करने वालों की तस्दीक के बाद रकम देने का मरहला शुरू। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा कि अंगूठे की तस्दीक के लिए शहरी नादरा ऑफिस से राब्ता करें। बहावलपुर के अंदर जो है फेज 3 जो है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर स्टार्ट हो चुका है। तो इस पे जो 80708171 पे जो मैसेजेस और प्लस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बेनिफिशरीज की लिस्ट तैयार की गई थी वो हमने पीडीएम में को भिजवा दी थी। वो वहाँ पे वेरिफिकेशन हो के तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो वेरीफाई हो रहे हैं लोग, तो लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। और सेम जो फेज 1 और फेज 2 में पैटर्न जो अडॉप्ट किया गया था, फेज 3 के लिए भी वही पैटर्न है कि लोगों के मोबाइल जो नंबर है उनके ऊपर मैसेज आएगा कि आपका 12,000 रुपीज़ जो है वो आ गया है, तो आप जाके अपने करीब तरीन सेंटर से उसको वसूल कर लेते हैं। तो वही लोग जो है कि सेंटर पे आएंगे, उनके थंब इंप्रेशन जो है वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद जो है वो उनका नाम लिस्ट से देख के जो मैसेज आया हुआ है तो उसको 12,000 रुपया जो है वो दे दिया जाएगा। थंब इंप्रेशन जो है ना वो उनका वेरीफाई नहीं होगा। उसके लिए सेम पैटर्न है कि वो जो है वो नादरा के ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पे जाके उसको दोबारा जो है वो वेरीफाई करवा लेंगे। बाकी जो जहाँ तक उसकी जो उसके वेरिफिकेशन है जो कैंडिडेट की, वो तो गवर्नमेंट अपने सेंट्रल लेवल पे कर रही है, जिससे वहाँ पे उसमें उन्होंने नादरा को इन्वॉल्व किया हुआ है, उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को किया हुआ है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को किया है, बिस्प को किया हुआ है। जिसमें जो मेन जो इशू था कि जो कोई ऐसा बंदा जो पहले किसी भी अपना सोशल वेलफेयर से, ज़कात उशर से या बिस्प से कोई ले रहा है फंड, तो उसको ये अभी कट ऑफ डेट तो नहीं आई कि कब तक ये जारी करें, लेकिन होपफुली जो है वो ईद तक ये जो है ना वो सिलसिला जारी रहेगा। बहावलपुर के अंदर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब में फूड अथॉरिटी का सीवरेज से सैराब की गई सब्जियों के खिलाफ एक्शन। 105 कैनाल काश्त की गई सब्जियों का खात्मा कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की जानिब से 105 कैनाल अराजी पर काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक काश्त की गई सब्जियों में धनिया, पालक, प्याज, टमाटर, गोभी, सब्ज मिर्च की फसल शामिल थी। लोधरा 48, बहावलनगर 40, बहावलपुर 16 और रहीम खान में 1 कनाल मुज़र सब्जियां तल्फ की गईं। इरफान मेमन के मुताबिक सब्जियों की काश्त के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाए। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स, पटसन और दीगर डेकोरेशन प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल ज्यादातर इलाकों में सब्जियां नहरी या ट्यूबवेल के पानी से उगाई जा रही हैं। आपको बताएं, कसाबों ने रोजेदारों को भी ना बख्शा। गैर मियारी गोश्त नाकिस स्लॉटर हाउस से बरामद कर लिया गया। 500 किलोग्राम गैर मियारी गोश्त मार्केट में ले जाते हुए पकड़े जाने का इंकशाफ हुआ है। कसाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आवाम की सहूलत के लिए
اور صاف ستھرے گوشت کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف شہروں میں سلاٹر ہاؤس قائم کیے گئے، لیکن قصابوں نے عوام کو معیاری گوشت فراہم نہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خانقاہ شریف میں غیر معیاری گوشت نجی سلاٹر ہاؤس سے برآمد کر لیا۔ 500 کلو گرام غیر معیاری گوشت مارکیٹ میں لے جاتے ہوئے پکڑا گیا، جس پر خانقاہ شریف کے قصاب کے خلاف تھانہ سماسٹہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملتان شہر میں غیر قانونی بھانوں کی بھرمار، نیو منیر آباد بھانوں کا گڑھ بن گیا۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ کا بھانوں کے خلاف بڑا آپریشن۔ کارروائی میں انفورسمنٹ ونگ کے 16 بھانوں کو 70,000 روپے کے جرمانے، مالکان کو بھانے شہر سے باہر منتقل کرنے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ بھانے شہر سے باہر منتقل نہ کرنے کی صورت میں جرمانے کی شرح بڑھانے کا انتباہ بھی جاری کر دیا گیا۔ ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ یونین کاؤنسل 11 اور 59 میں بھانوں کی آلودگی نے مکینوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ بھانوں کے گوبر کے سبب سیوریج کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ ناصر شہزاد ڈوگر کا مزید کہنا ہے کہ بھانے ڈینگی مچھروں کی اماج گاہ بن سکتے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھانوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے گی۔ آپ کو بتائیں، ڈی جی خان میں ڈپٹی کمشنر نے مختلف مقامات کا دورہ کیا، منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی بولی سے متعلق جائزہ بھی لیا۔ ڈی سی طاہر فاروق نے لاری اڈا، سبزی منڈی، سرور والی، کارڈیالوجی سینٹر کی جائے تعمیر سمیت دیگر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سبزی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی بولی کا جائزہ لیا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے ہمراہ مختلف دکانداروں کے سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس کا بھی جائزہ لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ کا دورہ، ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ایم ایس کو مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ بغیر ماسک کسی بھی شخص کو ہسپتال میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر انجینئر امجد شعیب خان ترین نے کہا کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ سمیت تمام سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ ضلع کے لوگوں کو علاج کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح دور دراز کے دیہی مراکز صحت اور بنیادی مراکز صحت بھی علاقے کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ہسپتالوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنا اور یہاں بہتر ماحول مہیا کرنا اشد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج اور ادویات کی فراہمی کے ساتھ صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت کی ہدایت پر رحیم یار خان میں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں منایا جائے گا۔ اس موقع پر جلوس اور مجالس کا انعقاد بھی نہیں ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور ڈی پی او منتظر مہدی کی قیادت میں ضلعی امن کمیٹی نے فیصلہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا کہنا تھا کہ حکومت نے یہ مشکل فیصلہ انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا ہے۔ دنیا بھر میں غیر معمولی فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ طواف کعبہ سمیت تمام اہم مذہبی مقامات بھی بند کیے گئے۔ اہل تشیع برادری امثال شہادت یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس و مجالس کا اہتمام نہ کرے۔ ڈی پی او منتظر مہدی نے کہا کہ دنیا بھر میں اجتماعات پر پابندی ہے اور پاکستان جیسا ملک اس مرض کے پھیلاؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بیماری کسی مذہب یا فرقے کی تمیز کیے بغیر انسانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس و مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ ضلع پولیس کی جانب سے انہیں سرٹیفکیٹس فراہم کیے جائیں گے تاکہ آئندہ سال انہیں اجازت میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سید علمدار، ریاض احمد نوری، علامہ عبدالرؤف ربانی، قاضی خلیل الرحمان، عمر امین اویسی، آصف نقوی، مرتضی بابر اور دیگر نے کہا کہ ضلعی امن کمیٹی نے ہمیشہ قیام امن سمیت اجتماعی عوامی مفادات کو ترجیح دی ہے اور موجودہ صورتحال غیر تسلی بخش ہے۔ ضلعی امن کمیٹی کے ممبران مشکل حالات میں انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ اب آپ کو بتائیں، شہید محمد خان کی نماز جنازہ میاوالی میں آبائی علاقے سوانس میں ادا کر دی گئی۔ شہید محمد خان گزشتہ روز گلگت کے علاقے کے قریب روڈ حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید کو کرنل عاقب اور کیپٹن عزیز کی زیر نگرانی پاک آرمی انجینئر کور کے چاقو چوبند دستے نے سلامی کی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے سوانس کے پیر سید گڈائی بادشاہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ڈی جی خان میں نواب غازی خان کے مقبرے کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہو گیا۔
19 लाख से तज़ीन और आराइश मुकम्मल की जाएगी। बैठने की जगह वसी और तख्तियां नस्ब की जाएंगी। डीजी खान में महकमा आसार कदीमा ने नवाब गाजी खान के मकबरे की तामीर का काम शुरू करवा दिया। डीजी खान के तारीखी पहलुओं को नुमाया करने के लिए काफी अरसे बाद मकबरे की खस्ताहाली को दूर किया जाएगा। गाजी खान के मकबरे पर मुनफरिद टाइलों का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए 19 लाख की रकम का तखमीना लगाया गया है। महकमा आसार कदीमा अपनी ज़ेरे निगरानी मकबरे की तामीरात की तज़ीन और आराइश मुकम्मल करवाएगा। मकबरे के इर्द गिर्द इंक्रोचमेंट हटाकर जगह को वसी किया जाएगा। बैठने की जगह और तारीख पर मुश्तमिल तख्तियां लगाई जाएंगी। मुल्तान से जहां पुलिस थानों के फ्रंट डेस्क मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। सीपीओ मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान ने 68 फ्रंट डेस्क एहलकारों को मुस्तकिल करने की सिफारिशात भिजवा दी हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं माहिर इमरान। पुलिस थानों के फ्रंट डेस्क मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। सीपी मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान ने 68 फ्रंट डेस्क एहलकारों को मुस्तकिल करने की सिफारिशात आईजी पंजाब को भिजवा दी। फ्रंट डेस्क एहलकारों को 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। तो हमें जैसे ही आईजी साहब की इंस्ट्रक्शंस मौसूल हुई कि इनकी रेगुलराइजेशन के लिए रिकमेंडेशंस भिजवाई जाएं, तो हमने एज सून एज पॉसिबल, हमारे पास 68 पुलिस स्टेशन असिस्टेंट्स हैं और सीनियर स्टेशन असिस्टेंट्स हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, ये लगभग 68 के करीब हैं। तो हमने फौरी इनकी रिकमेंडेशन जो है वो अपने हेडक्वार्टर में भिजवा दी है। आईजी पंजाब ने सूबा भर के फ्रंट डेस्क मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से वर्किंग पेपर्स मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया था। अब फ्रंट डेस्क मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के साथ सर्विस स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, जिस पर मुस्तकिल करने के हवाले से इब्तदाई तौर पर 68 फ्रंट डेस्क मुलाजमीन के नाम फाइनल किए गए। इन मुलाजमीन ने भी मुस्तकिल होने की खबर सुनी तो खुशी का इजहार किया। खुशी है कि हमारे सीपीओ साहब और आईजी साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया और हम परमानेंट हो रहे हैं, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पंजाब पुलिस में हमें पंजाब पुलिस को एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने क्रिएट हो। 4 साल का अरसा हो गया तकरीबन ओवरऑल पूरे पंजाब के जो फ्रंट डेस्क स्टाफ है, और वो फ्रंट डेस्क पे मतलब ड्यूटियाँ अपनी सर अंजाम दे रहे हैं ईमानदारी से। तो अब हम आईजी साहब के और अफसरान बाला के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मतलब हमारा ख्याल करते हुए हमारे ज़िले के जो 68 SSA PSA और हम हैं साथ, तो उनकी रिकमेंडेशन भिजवाई है कि इनको परमानेंट किया जाए। सीपी मुल्तान ने कहा कि फ्रंट डेस्क मुलाजमीन ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दें। उन्होंने कहा कि फ्रंट डेस्क मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, नवाज, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान पुलिस इन एक्शन 2 डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान रब नवाज और एसपी गुलगश्त डिवीजन अहमद नवाज शाह ने तफसीलात बताई और पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं माहिर इमरान। गुलगश्त में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रब नवाज तुल्ला और एसएसपी गुलगश्त डिवीजन अहमद नवाज शाह ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। थाना बहाउद्दीन जिक्रिया और न्यू मुल्तान की कार्रवाइयों की तफसीलात बताईं। एसएचओ मेहर बशीर हराज की सरबराही में थाना BZU पुलिस ने तनवीर गैंग के सरगना तनवीर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से रियाल, डॉलर और प्राइज बॉन्ड मालियती 23 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुल्जमान से पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। थाना बहाउद्दीन जिक्रिया में 2 मुकदमात वो ट्रेस किए हैं। एक में हमारे पास 22 लाख रुपए की रिकवरी है। ये बॉन्ड्स आपके सामने पड़े हैं जो कि नकद उन्होंने चोरी किए। दूसरी जानिब न्यू मुल्तान पुलिस ने भी शफकत अली गैंग के 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान में शफकत अली, रमजान और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान से 6 लाख रुपए से जायद नकदी, वारदात में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्टल बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जमान ने मुताद्दिद चोरी डकैती की वारदातों के इंकशाफ किए हैं। मुल्जमान और सिरका बिलजबर के मुताद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। इसमें हमारे जो सीपीओ साहब हैं उन्होंने फ्रीक्वेंटली इस पर मीटिंग्स भी की हैं, और जितने प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको हम हस्ब ज़ाब्ता शामिल तफ्तीश कर रहे हैं और उनकी मुस्बत तरीके से इंटरोगेशन करके इंशाल्लाह उस पर इंकशाफात जो हैं वो करवा के और उन्हें हम रिकवरी जरूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ गुलगश्त ताहिर मजीद, एसडीपी न्यू मुल्तान शहजाद मंजूर, एसएचओ थाना बहाउद्दीन जिक्रिया महर बशीर हिराज, एसएचओ थाना न्यू मुल्तान फैजान अली रजा समेत दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, नवाज, मुल्तान। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां सिटी सर्कल पुलिस की कार्रवाई, डकैतियों दीगर संगीन जराइम में मुलविस गैंग गिरफ्तार। थाना सिटी ए डिवीजन में डीएसपी सिटी सर्कल जावेद अख्तर जतोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डकैती से मजमूई तौर पर 2.5 लाख की रिकवरी हासिल हुई है। इसी हवाले से डीएसपी सिटी सर्कल का क्या कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज मैं इस बात से करूंगा
कि 20 फरवरी 2020 को तरंडा सवाई खामा मोबाइल शॉप के ऊपर 3,54,000 की राजनी हुई थी। उसके मुलजमान के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इलाके में किसी जगह पर छुपे हुए हैं। चुनांचे SHO एयरपोर्ट ने अपनी एक छापामार टीम तश्कील दी, जिसने जाकर मुलजमान को वहाँ से असला समेत गिरफ्तार किया। फिर इनकी इंटरोगेशन होती रही, फिर उनके हमने जुडिशल दाखिल करा दी शनाख्त परेड के लिए। इस दौरान काफ़ी FIR जो कि हमारे पास 3 केसेस थे 26/2/2020 के। एक ही दिन में 3 वारदातें हुई थी मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर। एक बसरा स्वीट्स के ऊपर हुई थी, मून फार्मा थी, फिर एक और शॉप थी। इसके अलावा 29 फरवरी को एक और वारदात हुई थी अब्बासिया टाउन के अंदर शंग्रीला मार्ट के ऊपर, जिससे फिर अंजुमन ताजरान में काफ़ी जो है ना वो मायूसी की लहर फैल गई थी कि शहर के अंदर पैनिक क्रिएट हो गई और वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। रहीम यार खान से ही खबर शामिल करेंगे, जहां महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई सीनियर ऑडिटर जमील भट्टी को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई सादिकाबाद के शहरी मोहम्मद असलम की दरखास्त पर की। मुलजिम जमील भट्टी ने मोहम्मद असलम से चेक पास कराने की मद में 3,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिस पर शहरी मोहम्मद असलम ने एंटी करप्शन को कार्रवाई के लिए दरखास्त दी। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन कलीम अहमद ने मजिस्ट्रेट राशिद अफजल ने सीनियर ऑडिटर जमील भट्टी को 3,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ रिश्वत सतानी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कैदियों के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया कि दरखास्तें जमानत दायर कराने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को मरासला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मलिक मुश्ताक अहमद ओजाला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि कैदी कोरोना वायरस की वजह से अपने वकला और किसी भी रिश्तेदार से मिलने से कासिर हैं। सेशन जजेस सुप्रिंटेंडेंट जेलों के जरिए मुल्जिमान की जमानतों की दरखास्तें भिजवाएं। दरखास्तों में 10 साल तक की सजा पाने वाले अफराद, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। ऐसे कैदी जो अपनी आधी या इससे ज्यादा सजा काट चुके हैं, उनकी दरखास्त जमानत अदालत को भिजवाई जाए। मुतल्लिका अदालतें कानून के मुताबिक फैसला करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब को मुल्तान का मुतवक्किल दौरा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर शहर की सजावट का काम जारी है। गंदम खरीदारी मराकिज में भी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाने लगी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सड़कों की सफाई सुथराई के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। एयरपोर्ट रोड, बोसन रोड, खानेवाल रोड और मुजफ्फराबाद रोड की खुसूसी सफाई जारी है। ड्यूरेंट्स की स्क्रैपिंग और ग्रीन बेल्ट्स का कचरा भी साफ किया जा रहा है। आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स को फाल करने का फैसला। तहरीक सूबा मुल्तान की हुकूमती फैसले पर तनकीद। मरकजी चेयरमैन कहते हैं कि हुकूमत ने टाइगर फोर्स बनाकर दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे जुनेद अनवर अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीके सूबा मुल्तान की जानिब से टाइगर फोर्स पर तनकीद की गई है। चेयरमैन तहरीके सूबा मुल्तान राव अब्दुल कयूम शाहीन का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत ने टाइगर फोर्स पर दानिशमंदाना फैसला नहीं किया। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर बल्दियाती इदारे बहाल करने चाहिए। टाइगर फोर्स पर सियासी जमातें मुतफिक नहीं। इसमें नए बच्चे हैं, अभी उनको इतना तजर्बा नहीं है। जो हमारे बल्दियाती निज़ाम में जो हमारे चेयरमैन थे, कौंसलर थे, खवातीन कौंसलर थी, उनके लिए ये ज़बरदस्त काम था। बेशक हुकूमत उनके फंड्स अनाउंस न करती, लेकिन उनमें कम अज कम उनको बहाल कर देती। उनका कहना था कि टाइगर फोर्स में भी मनपसंद लोग ही भर्ती किए जाएंगे। मेंबरान असेंबली और तहरीक इंसाफ का टाइगर फोर्स पर असर व रसूख रहेगा। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि अभी भी वक्त है कि उसी बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती जो हमारे कौंसलर हैं, चेयरमैन हैं, खवातीन हैं, उन सबको बहाल कर दिया जाए और उस पर काम कराया जाए। उनका मजीद कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में बल्दियाती इदारे बेहतर अवामी खिदमत कर सकते थे। हुकूमत को चाहिए सिर्फ खिदमत की बुनियाद पर बल्दियाती इदारे बहाल करे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडवाइजर सूबाई मोहतसिब मलिक अहमद बख्श भापा के खालाजाद भाई और डेरा गाजी खान के सपूत सिविल अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर कादिर बख्श मीरानी मरहूम की रस्म कुलखानी अदा कर दी गई। कुरान खानी में मरहूम के अजीज व अकारिब समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम कादिर बख्श खान मीरानी का गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका में इंतकाल हुआ था। वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में बतौर लेक्चर भर्ती हुए और असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात रहे। बादजां वो 1972 में अमेरिका मुंतकिल हो गए। उन्होंने डिजाइनिंग के शोबे में 1962 में बरतानिया से आला डिग्री हासिल की। मरहूम को उनकी आला खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने सिविल एजाज से नवाजा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, माह सियाम के मौके पर जहां हर जी रोज रहमत खुदाबंदी समेटने में मसरूफ, वहीं मुल्तान के स्टेज आर्टिस्ट भी किसी से पीछे नहीं। मारूफ अदाकारा नीना खान ने माह सियाम में शोबिस सरगर्मियां तर्क करके खुद को घर में आइसोलेट कर लिया, इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गई। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम शहजाद। ये मारूफ स्टेज अदाकारा नैना खान है, जिन्होंने माह सयाम के एहतराम में शोबिस सरगर्मियां तर्क कर दी हैं। मारूफ अदाकारा ने कोरोना के खदशात के बाइस खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वो घर के काम काज खुद करती हैं। नैना का कहना है कि माह सयाम में सहरी और अफ्तारी खुद बनाती हैं और रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करती हैं। रोजे रख रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, सहरी खुद घर में बनाते हैं, अफ्तारी भी घर वालों के लिए खुद बनाते हैं। अक्सर बिजी होते हैं शोबिज में, तो अभी आजकल रमज़ान के इस नेक महीने में हम फ्री हैं, तो रोज़े रख रहे हैं और अल्लाह पाक से इबादत कर रहे हैं। मारूफ अदाकारा का कहना है कि वो माह सयाम के सारे रोजे रखती हैं और बाकायदा नमाज भी अदा करती हैं। इनका कहना है कि आर्टिस्ट का रमजान भी आम इंसानों की तरह होता है। वो पूरा साल इस माह का शिद्दत से इंतजार करती हैं। अदाकारा मद्दाहों को भी सोशल मीडिया के जरिए कोरोना बारे आगाही की दरख्वास्त करती रहती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि सब अपने अपने घरों में सेफ रहें और नमाज पढ़ें, रोजे रखें और अल्लाह पाक से तौबा तैब हों कि अल्लाह पाक ने हमें किस गुनाह की सजा दी है और कोरोना वायरस से हमें से निजात दिलाए। मारूफ अदाकारा का कहना है कि वो दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदके कोरोना जैसी मोहलिक वबा से निजात दिलाए। कोरोना के खदशात के बाइस मुल्तान की मारूफ आर्टिस्ट नैना खान ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और सहरी और अफ्तारी घर में अकेले ही करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ रोही।